راج گندل نے پوری تفصیل سمجھ لی۔ ایک بار پھر اسے جدوجہد کی منزل میں داخل ہونا تھا، چنانچہ وہ وہاں سے چل پڑا اور لمبے فاصلے طے کرتا رہا۔ پھر اسے دور سے ہی وہ خوفناک عمارت نظر آ گئی، جس کے اوپری سرے پر اینٹوں اور سیمنٹ سے بنا ہوا ایک کنواں نظر آ رہا تھا۔ مگر وہ سیدھا اس عمارت تک نہیں گیا، بلکہ اس نے ایک جگہ منتخب کی۔ یہ نیم کا ایک درخت تھا، جس کے نیچے بیٹھ کر اس نے وہ جاپ کرنا شروع کر دیا جو اسے ناک سے انسان بنا سکتا تھا۔ اور جب جاپ کا سمے پورا ہوا تو بہت عرصے کے بعد اس نے اپنے آپ کو انسان کے شریر میں پایا۔ جو کچھ راج گندل پر بیت رہی تھی وہ کالے علم کا شاخسانہ تھا، اور وہ شیطانی علوم کا پیروکار ان تمام مصیبتوں کو بھگت رہا تھا۔ بہرحال اپنے انسانی جسم کو محسوس کر کے اسے خوشی بھی ہو رہی تھی، اور دکھ یہ تھا کہ اب وہ راج گندل نہیں تھا۔ بہرحال انسان بن کر وہ اس عمارت کی طرف چل پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہنچ گیا۔ ادھر راج گندل اپنی زندگی کے اس عذاب سے گزر رہا تھا اور اس کا غرور پاش پاش ہو گیا تھا۔ ادھر دوسرے عوامل یہ تھے کہ عرشیا نے سلامت علی کے انکشافات کے بعد صبر کر لیا تھا اور دونوں اداس زندگی گزار رہے تھے۔ چودھری شاہ نواز کی فطرت میں بڑی تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ عرشیا کے ساتھ وقت گزارتا تھا اور اس کی دلجوئی کرتا تھا۔ دونوں اپنی بچی کے بارے میں باتیں کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ ان کی نور نظر انہیں مل جائے۔ ادھر نینا پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ بشیر بیگ کو، جو کبھی دو کوڑے کا انسان تھا، اب معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام مل گیا تھا۔ ہر طرف عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ کچھ پہچان والے بھی تھے جو اس کی شکل دیکھ کر گومگو کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس کی شان و شوکت کی وجہ سے وہ اسے مخاطب بھی نہیں کر سکے تھے، اور بشیر بیگ بھی اب اپنے ماضی میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اماں تاجی کہتی تھیں، ہائے بشیر بیگ، تو اپنا نام بدل لے، میں تجھے اچھا سا نام بتاتی ہوں، تو راجہ چنگیز بخت رکھ لے اپنا نام۔ کیوں اماں تاجی؟ بہت بڑا نام ہے، تجھ پر سجے گا۔ اماں، اللہ نے ہماری تقدیر بدل دی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اپنی ماں کو بھی بھول جائیں۔ لے، ماں کو بیچ میں کیوں لاتا ہے؟ تو اور کیا اماں، ہمارا نام راجہ چنگیز بخت تو ہمارے باپ کا کیا نام ہوگا؟ اس کا نام راجہ، کوئی بھی راجہ رکھ لے۔ اماں تاجی کی معلومات بس اتنی ہی تھیں۔ اور میرے اصل باپ کا کیا ہوگا؟ لوگ مجھے کسی اور باپ کا بیٹا کہیں گے، اور میرے باپ کی روح قبر میں تڑپے گی نہیں اماں؟ ہاں یہ تو ہے، چل پھر ٹھیک ہے، بشیر بیگ ہی ٹھیک ہے۔ بہرحال بشیر بیگ کی زندگی بہت عمدہ گزر رہی تھی، اور اب اس نے اس بات کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا تھا کہ نینا اس کی تقدیر میں شامل ہونے کے بعد اس کی اس حیثیت کا باعث بنی ہے۔ نینا کو وہ بڑی عزت و احترام دیتا تھا۔ ادھر بچی تھی کہ جنگلی بیل کی طرح بڑھ رہی تھی۔ دوسرے بچے جس طرح بڑھتے ہیں وہ ان سے 6 گنا آگے تھی، بولنے لگی تھی اور بڑی پیاری باتیں کرتی تھی۔ البتہ اماں تاجی 2-4 بار بڑی پریشان ہوئی تھی جب انہوں نے دیکھا تھا کہ بچی باغ کے درختوں کے جھنڈ کے نیچے بیٹھی کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ اماں کو وہ بالکل نظر نہیں آیا جس سے وہ باتیں کر رہی تھی، لیکن بچی کا انداز ایسا تھا جیسے وہ باتیں کرنے سے بہت زیادہ خوش ہو اور بڑے پیار سے اس سے باتیں کر رہی ہو۔ جب اماں جی کو کوئی نظر نہیں آیا تو وہ اس کے پاس پہنچ گئی۔ بیٹا نینا، کیا کر رہی ہے یہاں؟ ارے اماں تاجی، آپ کدھر آ گئی؟ میں ماموں جان سے باتیں کر رہی ہوں۔ لے، یہ درخت تیرا ماموں ہے؟ تم جاؤ اماں، مجھے باتیں کرنے دو۔ بیٹا، مگر ہو بھی تو کوئی جس سے تو باتیں کر رہی ہے۔ اماں تم جاؤ، مجھے باتیں کرنے دو، بچی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہاں اس کے ہر حکم کی تعمیل ہوتی تھی، چنانچہ تاجی وہاں سے چلی گئی، لیکن آج وہ کچھ زیادہ ہی الجھ گئی تھی۔ یہ بچی کس سے باتیں کرتی ہے؟ اور اس نے یہ بات بھی بشیر بیگ کو بتا دی۔ اے بشیر بیٹا، مجھے اس کے دماغ میں تھوڑی سی لٹک نظر آوے ہے۔ کس کے دماغ میں اماں؟ ارے نینا کی بات کر رہی ہوں۔ اماں، سکون سے وقت گزارو، بیکار باتیں نہیں کیا کرتے۔ تیری قسم بیٹا، غلط نہیں کہہ رہی، اکیلے میں بیٹھی باتیں کرتی رہتی ہے۔ کوئی آواز سنی تم نے؟ نہیں، آواز تو نہیں سنی۔ تو پھر بلا وجہ کی باتیں کرتی ہو، بشیر بیگ نے ڈانٹ پلائی۔
यूं नैना उस घर में परवान चढ़ रही थी और बज़ाहिर यूं लगता था जैसे उसे एक पुरसुकून जिंदगी नसीब हो गई हो। मुलाजिम उसकी इज्जत करते थे, मुलाजमों को उससे बड़े फायदे थे। वो मुलाजमों को इनामात भी देती रहती थी और कई बार मुलाजमों ने ये इनाम अम्मा ताजी और बशीर बेग के सामने रख दिए थे। साहब जी, आपका नमक खाते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें हमारी नमक हरामी सामने आती हो। साहब जी, बेटियां हमें ये चीजें देती हैं, पता नहीं आपसे पूछती हैं या नहीं। जो चीजें उन मुलाजमों को दी गई थीं, वो बेहद कीमती थीं। अम्मा ताजी ने एकदम हाथ बढ़ाए थे लेने के लिए। ए बच्ची ही है, तुमने बड़ा अच्छा किया, हमें बता दिया, ये तो बड़ी कीमती चीजें हैं। अम्मा ताजी, मैंने आपसे कहा कि ये चीजें आप वापस नहीं लें। बशीर बेग ने गुस्सीले लहजे में कहा। मगर देखो नैना, तुम्हें जो कुछ देती है मैं इजाजत देता हूँ कि वो तुम रख लिया करो, वो तुम्हारा हक है। नैना का बहुत बड़ा मकाम है इस घर में, मालिक है वो इस घर की। अम्मा ताजी, आप आइंदा कभी इन लोगों से ये ना पूछें कि नैना ने इन्हें क्या दिया, और ना तुम लोगों को ये बताने की जरूरत है। मुलाजिम खुश हो गए थे। राजगंदल की सारी तदबीरें उल्टी हो गई थीं। हर शख्स पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था, जबकि वो मुसलसल जलीलो ख्वार हो रहा था। आखिरकार वो उस काले खंडर में दाखिल हो गया जो इंतहाई हिब्बतनाक था, मगर राजगंदल के लिए कोई हैसियत नहीं रखता था, क्योंकि राजगंदल की जिंदगी ही पुरअसरार जगहों पर गुजरी थी। यहाँ आने के बाद उसने अपने लिए एक मुनासिब जगह तलाश की। अब जब भवानी पंथी में आ गया था तो उसे वही करना था जो उसे मंकारी ने बताया था। ये जगह उसके लिए बेहतरीन थी। उसने सोचा कि अब आगे कुछ करना चाहिए। चुनाचे उसने 2-3 बोल पढ़े जो मंकारी ने उसे बुलाने के लिए बताए थे, और मंकारी अपने वादे के मुताबिक वहां आ गया। उसने मुस्कुराते हुए राजगंदल को देखा और बोला, तूने यहाँ तक सब कुछ हासिल कर लिया, अब ये बता आगे क्या करना चाहता है। जो कुछ तेरे मन में है मुझे बता दे, मैं तेरी पूरी पूरी सहायता करूंगा। भवानी देवी से भी मेरी बात हुई थी, उसने तुझे अपने पंथ में स्वीकार कर लिया है। आपसे बहुत सी बातें मालूम करना चाहता हूँ मंकारी महाराज। देखो, मैं बता चुका हूँ कि पहले मैं महासाबली पंथ में रहा, साथ ही महाकाली का भी पुजारी रहा, और मुझे बड़ी शक्तियाँ मिली। मनुष्य का मन लालच में डूबा रहता है। मैं महाशक्तिमान बनना चाहता था और इसके लिए मैंने अपनी सारी शक्ति खो दी। 2 ही आरजुएं थी मेरे मन में और इन्हीं से मेरा जीवन लिपटा हुआ था। शक्तिमान बन जाऊं और संसार पर राज करूं। लेकिन मेरा रास्ता रोकने वाला एक मुसलमान आलिम था जिसने मेरे सारे ख्वाब खराब कर दिए। मेरे मन में ये आरजू थी कि मैं उस बच्ची को अपने कब्जे में ले लूं जो मेरे जादू के जेर असर एक कब्र में जन्म लेगी। सारे काम हो गए, पर ऐन वक्त पर उस मुसलमान आलिम ने मेरा सारा किया धड़ा चौपट कर दिया। यहाँ तक कि मैं 2 कोड़ी का हो गया और एक कीड़े का जीवन बताते हुए बार बार मौत के हाथों से बचा। फिर तुम मुझे मिल गए मंकारी महाराज। अब मैं तुमसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई ज्ञान ध्यान नहीं है, आगे मैं क्या करूँ। मैं तुझे ऐसे जा बताऊंगा जिन्हें करके तू इतनी शक्ति हासिल कर लेगा कि तेरे मन में जो मनोकामना है, यानी उस मुसलमान आलिम से तू भवानी के मंत्र के साथ मुकाबला कर और उससे अपना बदला ले ले। कितना बड़ा आलिम होगा वो। उसमें कोई ऐसी बात है महाराज जो वो मेरे काबू में नहीं आता। महासाबली और महाकाली का इल्म भी उसने फेल कर दिया। अच्छा, ये बात है। मैं बताता हूँ तुझे कि उसके पास कौन सी शक्ति है। मुझे थोड़ा सा समय देगा तू? जी महाराज। इसके अलावा वो लड़की जिसे मैं काबू में करके महासावली को भेंट देना चाहता था, उसे भी उसी आलिम ने ही कहीं छुपा दिया। वो अब तेरे लिए बेकार है, कोई फायदा नहीं होगा उसकी भेंट देने से। महासावली और महाकाली भवानी पिन के किसी भी पैरोकार का बलिदान स्वीकार नहीं करेगी। फिर भी मैं उस मुसलमान आलिम को शिकस्त देने के लिए उस बच्ची को अपने कब्जे में लेना चाहता हूँ। पगले, तू एक काम कर, पहले अपने जाप कर ले जो 14 दिन की हैं। तू देखेगा कि बैर तेरे कब्जे में आ जाएंगे। मैं तुझे उस मुसलमान आलिम के बारे में बताना चाहता हूँ। जा, यहाँ से हट जा, मुझे जाप करने दे।
ये कहकर मंकारी एक चौकोर लकीर बनाकर उसके बीच बैठ गया और राजगंधर उससे कुछ फासले पर एक बड़े पत्थर पर बैठकर उसे देखने लगा। मंकारी चौकोर लकीरों के बीच में बैठा हुआ कोई मंत्र पढ़ रहा था और बार बार उसके दरमियान से मुट्ठी भर कर उसी में डाल रहा था कि अचानक ही राजगंधर ने देखा कि चौकोर लकीरों के दरमियान पानी की लकीरें उमड़ने लगी थीं। ये पानी लकीरों से बाहर नहीं बह रहा था बल्कि उन्हीं में गर्दिश कर रहा था और मंकारी इस तरह ऊपर नीचे हो रहा था जैसे पानी उसे ऊपर नीचे कर रहा हो। अचानक ही राजगंधर ने उस पानी से धुआं उठते हुए देखा। मंकारी अब भी वहीं बैठा हुआ था। धुआं इतना ऊंचा उठा कि उसने मंकारी को ढक लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये धुआं खत्म होता गया और थोड़ी देर के बाद पानी की लकीरें भी नापैद हो गईं। तब मंकारी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और बोला, उतर कर आजा, मैंने सब कुछ मालूम कर लिया है। राजगंधर जल्दी से मंकारी के पास पहुंच गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ जोड़ दिए। जय मंकारी महाराज, जय भवानी, मंकारी ने हाथ उठाकर कहा। फिर बोला, मैंने सब कुछ मालूम करा लिया है। मुसलमान आलिम के कब्जे में एक जिन था जो उसकी हर तरह से सहायता करता था। मुसलमान आलिम ने उसी जिन के जरिए वो बच्ची गायब कराई और उससे मुख्तलिफ जगहों पर परवरिश करवाता रहा, मगर उसने एक बेवकूफ़ी की। उसने मोहब्बत में आकर उस जिन को आज़ाद कर दिया और अब वो जिन बेलगाम फिर रहा है। अब कोई उसका मालिक नहीं है, पर मुसलमान आलिम से उसकी दोस्ती है और वो अपनी दोस्ती के नाते ही सब कुछ कर रहा है। मुझे अंदाजा हो गया था, मुझे पूरा अंदाजा हो गया था कि कोई पुरस्कार कुव्वत उसके कब्जे में है, मगर अब मैं क्या करूं मंकारी महाराज। भवानी के दास, मंकारी को न जाने क्यों तुझसे इतना प्रेम हो गया है। मैं तुझे ऐसी तरकीब बताता हूँ कि तू भी जीवन भर याद करेगा और उस मुसलमान आलिम से निपटना तेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। जय मंकारी महाराज, राजगंधर ने मुसरत से कपकपाते हुए लहजे में कहा। मंकारी किसी सोच में गुम हो गया था। बहुत देर तक वो कुछ सोचता रहा। फिर उसने कहा, लंबा खेल है, पर जो खेले वही खिलाड़ी। मैंने ये ज्ञान ध्यान हासिल करने के लिए बड़े पापड़ बेले हैं। खैर, अब मैं जो तुझे बता रहा हूँ उसे गौर से सुन, मंकारी ने कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो राजगंधर को तफसील समझाने लगा। राजगंधर अकीदत से गर्दन झुकाए बैठा मंकारी की बातें सुन रहा था। तमाम तफसीलात सुनने के बाद उसने एक बार फिर लरजती हुई आवाज में कहा, जय मंकारी महाराज, मेरी जय-जयकार करने से कोई फायदा नहीं होगा। जो खेल मैंने तुझे बताया है, तुझे खुद भी अंदाजा होगा कि वो कितना मुश्किल खेल है। कोई भी मुसीबत तेरे गले पड़ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि तू महाभवानी का दास होने की हैसियत से भवानी नाथों के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत बन गया है, क्योंकि महाकाली और महासाबली के दामों की तादाद बहुत ज्यादा है, जबकि भवानी देवी के पुजारी संसार में बहुत कम हैं। भवानी देवी अपने काम से काम रखती है। उसके बैर जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करते हैं, लेकिन वो जरूरतमंद जो सिर्फ भवानी के दास हों। मैं जरूरत पड़ने पर तेरी मदद जरूर करूंगा। जहाँ तुझे मेरी मदद की जरूरत हुई, मैं तेरे पास पहुँच जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। मुझे बुलाने के लिए 3 शब्द तेरे पास हैं, चुनाचे जब मन चाहेगा मुझे अपने पास बुला लेना। मंकारी चला गया और राजगंधर के पास सोचों का समुंदर मौजन हो गया। वो अपने माजी को याद कर रहा था। जिन मुश्किलात में पड़ गया, इन्हें उसने खुद ही अपने गले लगाया था। पुराने बैर रुखसत हो चुके थे, जिनसे उसकी शनाख्त थी। अब उनमें से कोई उसके साथ नहीं था। अब नई पीढ़ी के नए बैर उसके साथ शामिल हो गए थे, जिनसे अभी तक उसने कोई काम नहीं लिया था। मंकारी ने जो तदबीर उसे बताई थी, इसमें कोई शक नहीं कि कांटों का बिस्तर था। बड़े मुख्तलिफ तरीके से उसे काम करना था। बाबा अदरीस अली से इंतकाम का जज्बा उसके सीने में मौजूद था, जिन्होंने उसके सारे मंसूबे खाक में मिला दिए थे। वो दिल ही दिल में सोचता था कि अगर बाबा अदरीस को खाक में मिलाने में कामयाब हो जाऊं तो समझूंगा कि मुझे हर तरह की शक्ति हासिल हो गई। जीवन में नफा नुकसान तो होता ही रहता है। इस तरह एक काले धर्म वाला एक नेक आलिम के दर पे हो गया था। राजगंधर को इसका कोई तजुर्बा नहीं था कि किसी मुसलमान को कैसे भटकाया जा सकता है।
बहरहाल मनकारी ने जो निशानदही की थी उसकी तस्दीक के लिए उसने पहली बार भवानी के बैर को बुलाने का मंत्र पढ़ा और जो कोई उसके सामने आया उसे देखकर राजगंधल ने कहा, मुझे उस मुसलमान का पता बताओ जिसकी निशानदही मनकारी ने की है। मेरे साथ साथ आ जाओ महाराज, बैर ने कहा और राजगंधल तैयारी करके बैर के साथ चल पड़ा। मनकारी ने जो काम बताया था वो था तो बहुत कठिन और मुश्किल, लेकिन अब जिंदगी बचाने के लिए ये सारी मुशक्कतें करना ही थी। मनकारी की कही हुई बातों पर अमल किए बगैर और कोई चाराकार नहीं था। जिस शख्स का पता मनकारी ने खुसूसी तौर पर बताया था उसकी भी एक लंबी कहानी थी। बाप का नाम फरजंद खान था और कुछ ऐसे हालात थे कि जिंदगी में और कुछ करने का मौका ही नहीं मिला था। सारी उम्र मेहनत मजदूरी करते गुजरी, न जाने क्या क्या काम धंधे करता रहा, मुश्किल से गुजारा होता था। उस वक्त 11 बच्चों का बाप था, हर उम्र के बच्चे घर में मौजूद थे। जिंदगी से आजिज था और समझ में नहीं आता था कि क्या करे और क्या ना करे। सबसे बड़ा बेटा मिट्ठू खान था। मिट्ठू खान अपनी मिसाल आप था, सारी बस्ती में उसकी कहानियां गूंजती थीं। नकट्टू था और काम धंधे से कोई दिलचस्पी नहीं रखता था, लॉटरियों की तलाश में रहता था और पीरों फकीरों से सट्टे के नंबर और ऐसे वजीफे पूछता रहता था जिससे जिन्नात कब्जे में आ जाए, लेकिन जिन्नात भला ऐसे कब्जे में कहाँ आते हैं। वैसे उसका बेहतरीन मशगला खेतों से अशिया चुरा कर इन्हें इस्तेमाल करना था। खुद भी खाता, दोस्तों को भी खिलाता। घर में नहीं ला सकता था, लेकिन एक बार तो उसने घर में भी पेशकश कर दी थी। कहता था, बिला वजह इतनी मेहनत करते हो अब्बा, इन बच्चों को पालने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। तेरा सत्यानाश जाए कमीने, बेशरम, कहाँ से खिलाएगा तू इन्हें? अब्बा, मेहनत मजदूरी करूंगा और कहाँ से खिलाऊंगा? तू और मेहनत मजदूरी करेगा? क्यों अब्बा, करता नहीं हूँ क्या? क्या करता है? अब्बे, तू तो भैंस का दूध तक नहीं निकाल सकता, सारे बच्चे लगे रहते हैं, तू बैठा देखता रहता है। ऐसे छोटे मोटे काम मुझसे ना कराया करो अब्बा, घर में जितनी गंदम की जरूरत होगी मैं ला कर दूंगा। आखिर ये खेत खलियान किसके लिए फैले हुए हैं? हमारे आसपास सब अपने ही तो हैं। अब देखो ना, आजकल चनों की फसल उगी हुई है, सारी बस्ती मुझसे कहती है कि मिट्टू मियाँ, जरा थोड़े से चने तो तोड़ कर लाओ। बस्ती के मुख्तलिफ घरों में चनों का साग मुहैया करता हूँ और अब्बा चोरी करके लाता है ना, मैं अभी खुद तुझे सप्लाई किए देता हूँ। और उसके बाद फरजंद खान मिट्टू मियाँ के गिरबान को पकड़ लेता था। मिट्टू मियाँ ने भी अब वो जगह मुंतखब कर ली थी जहाँ से वो दरवाजे के बगैर बाहर जा सके। दीवार के उस कच्चे हिस्से को उन्होंने अपने हाथों से तोड़ा था और वहां से निकलने की मशक कर ली थी। बस थोड़े से अचके हाथ दीवार पर रखे और दीवार के बाहर। कई बार फरजंद खान उस दीवार को मिट्टी से बना चुका था, लेकिन ये दीवार ही तो मिट्टू मियाँ का आखिरी सहारा थी। बहरहाल ये सिलसिला जारी रहा। बाप की तरफ से चोरी की इजाजत नहीं थी, इसलिए भाइयों को खिलाने की हसरत दिल में ही रही। फरजंद खान कुछ न कुछ करके कमा ही लेता था। मोहल्ले के 2-4 घरों को भैंस का दूध भी मुहैया करता था, भैंस के लिए चारा भी लेकर आया करता था। छोटे मोटे काम करके इतने पैसे भी हासिल कर लिया करता था जिससे बच्चों के कपड़े और दूसरी जरूरियात पूरी हो सके। तंग था तो बस मिट्टू से, यहाँ तक कि एक दिन बीवी के मशवरे से उसने आखिरी फैसला कर लिया, मैं इस निकट्ठू को निकालना चाहता हूँ, अब उसका गुजारा मेरे घर में नहीं हो सकेगा। निकालो कमबख्त मारे को, सबका जीना हराम कर रखा है, दूसरे बच्चे भी सहमे सहमे रहते हैं। माँ भी मिट्टू मियाँ से आजिज थी। फिर ये फैसला मिट्टू मियाँ को सुना दिया गया, बस अब तुझे इस घर में नहीं देखा जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं चौधरी साहब से कहकर तुझे बस्ती से भी निकलवा दूंगा। जरूरत नहीं पड़ेगी अब्बा, जालिम जमाना इतना ही संगदिल होता है, ताकतवर का साथ तो सब देते हैं। समझ ले, तो मेरी दौलत और जायदाद से आग। फरजंद खान ने कहा, दौलत जायदाद? अब्बा, तुम्हारी दौलत तो तुम्हारे ये बाकी 10 बच्चे हैं और तुम्हारी जायदाद ये छोटा सा झोंपड़ा, भला इसमें से मुझे क्या हिस्सा मिलेगा? गुसल खाना तक तो मेरे हिस्से में नहीं आएगा।